I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. तो गुड मॉर्निंग, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे कंपनी के नॉर्थ इंडिया की मार्केटिंग हेड और साउथ इंडिया की मार्केटिंग हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज बहुत सारी चीज़ हमें उनसे सीखने के लिए मिलेगा। अगर हम नॉर्थ इंडिया के मार्केटिंग हेड विजय सर की बात करें तो वो हमारे सीनियर मार्केटिंग मैनेजर के साथ साथ नेपाल की कंट्री हेड भी हैं। इनके अच्छा मार्केटिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ मार्केटिंग ऑपरेशन हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ये सेक्टर में काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं। और अगर हम साउथ इंडिया की मार्केटिंग हेड राहुल सर की बात करें, वो हमारे साउथ इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर हैं। वो पहले से ही सूडान की कंट्री हेड रह चुके हैं। इनकी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज है मार्केटिंग सेक्टर में और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छे नॉलेज भी रखते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं विजय सर और राहुल सर को। स्वागत है सर हमारी इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग मनोरंजन एंड विजय, गुड मॉर्निंग आपको भी। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनोरंजन, गुड मॉर्निंग राहुल एंड गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स जो पूरे इंडिया से और इंडिया के बाहर से जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो गुड मॉर्निंग सारे व्यूअर्स को। एंड विजय दिवाली अभी भी चल रहा है और सबको एक बार और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्रीटिंग्स फॉर दिवाली। हमारी यही शुभकामना है कि आपके जीवन में हर दिन दिवाली रहे। करेक्ट। हर दिन आपका खुशियों से भरा रहे और जितने भी अंधेरे आपके जीवन में हैं वो दूर हो सकें। यही उद्देश्य लेके आज हम इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। मैं विजय कुमार और मेरे साथी मिस्टर KP राहुल। राहुल जैसे हम विजय जो टॉपिक जब भी देखता हूँ तो बड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट होता है ना। मैसिव इनकम है ना विद 6 into 6 स्ट्रक्चर, ये बड़ा बेहतरीन टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग पहले भी बहुत बात कर चुके हैं और वापस आज फिर आ रहे हैं। एक लंबा थोड़ा सा गैप के बाद हम लोग दोबारा आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस टॉपिक हम लोग बार बार इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चीज है जहां पे आपको जानना बहुत के ऊपर।
राहुल, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि त्योहार का मौसम है, लोग बहुत अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ बैठे हैं, तो मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। तो मेरा आपसे जो पहला प्रश्न है कि इनकम किस प्रकार बनाई जाती है, हाउ इनकम इज मेड, किस प्रकार अपने आय को आप बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, जैसा आपने बोला कि आप आय कैसा बना सकते हैं, बिकॉज डीएक्सएन एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आपको वेरियस सोर्सेस है इनकम बनाने के लिए। आप जैसे करने के बाद आपका पास एक 9 टाइप्स ऑफ इनकम, जिसमें हम लोग ना ब्रॉडर एस्पेक्ट से हम लोग बोलते हैं कि डीएक्सएल में आपके पास 9 टाइप्स ऑफ इनकम है। वो शुरुआत में तो रिटेल प्रॉफिट बताते हैं, ग्रुप बोनस बताते हैं, स्टार ग्रुप बोनस बताते हैं, डेवलपमेंट बोनस बताते हैं, लीडरशिप बोनस बताते हैं, हैंडफोन इंसेंटिव बताते हैं, वो बताते हैं, और अपना ग्रुप इंसेंटिव बताते हैं। तो ये आपको अब उसमें हर 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 टर्म के सेक्टर को आपको जो वो आपको जाना बहुत चीज जहां पे आता है। जो हमारा जो टॉपिक है 6x6 स्ट्रक्चर, वो इनकम वहां पे ज्यादा आता है। विजय, क्या आप मुझे आप 100% में से सहमत रहेंगे? क्योंकि ये एक चीज है जहां पे हमको बार बार मैं थोड़ा सा, दुनिया पे कहते हैं। राहुल, मेरा प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी था और सिंपल भी था। देखो, जैसे कि मेरा पर्पस मतलब था कि हाउ इनकम इज मेड, हाउ टू इंक्रीज द इनकम सर्कल, किस प्रकार, क्योंकि आज के समय में अगर हम बात करें तो इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द टाइम एंड पेड बाय द आवर्स, राइट, दर इनटू समय। यानी हर किसी के पूरे विश्व में आज एक ही फार्मूला इस्तेमाल होता है कि आपने कितने घंटे काम किया, और हर घंटे की आपकी एक कीमत तय है, कीमत होती है। अब वो डिपेंड करता है, स्किल्ड लोगों की कीमत अलग है, नॉन स्किल्ड की अलग है, लेबर की अलग है, और इंजीनियर्स की अलग है, डॉक्टर्स की अलग है। हर किसी को उसके घंटे के हिसाब से, कार्य के हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। तो ये एक हमारा इनकम सर्कल हुआ। अब इस इनकम सर्कल को, क्योंकि घंटे सभी के पास 24 हैं, और 24 घंटे कोई भी लगातार काम नहीं कर सकता, इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन इन घंटों को कैसे बढ़ाया जाए जिससे कि हमारा इनकम बढ़ सके, तो इसके बारे में राहुल जी जरा थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, क्योंकि इस इनकम को बढ़ाने में किस प्रकार 6x6 स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। यस यस विजय, आपने सही कहा। ये जो इनकम जो बनते हैं, ये 2 फैक्टर्स के ऊपर है। एक डेफिनेटली हमारा रेट, जो आपका एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका स्पेशलाइजेशन में डिपेंड करता है, और दूसरा होता है समय। और यहाँ पे जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इस 4 क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इस 4 क्वाड्रेंट में जहां पे एम्प्लॉइज भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, बिजनेस वाले भी हैं, और अपना इन्वेस्टर्स भी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो एम्प्लॉयज हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयज है, इनका ये जो रेट है, वो सभी लोग इस रेट के ऊपर काम करते हैं कि हम स्किल को डेवलप करेंगे, इसको रेट को। अगर सोच लो एक डॉक्टर है तो सोचिए कि मेरा हर घंटे का जो रेट है, अगर 1000 रुपए है तो 1000 रुपए से कैसे बढ़ाएंगे, वो उसके ऊपर वर्क करते हैं। अगर इंजीनियर है तो वो सोचते हैं कि मेरा स्किल को और डेवलप करके उस रेट को बढ़ाना है। लेकिन जो बिजनेस वाला कैटेगरी है, इन्वेस्टमेंट वाला कैटेगरी है, वो ये सोचते कि ये मेरे हावर्स, मेरा जो समय है उसको कैसे बढ़ाना है। उनका चिंता सिर्फ उसके ऊपर रहता है। और इसी चिंता के हिसाब से ये जो 6x6 स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। बिकॉज यहाँ पे भी यही होता है कि हम सिर्फ हमारे 24 घंटे के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हमें बेनिफिट मिल रहा है इस सारे टीम का समय के ऊपर। अगर मेरे पास 6 लोग हैं तो 6 इंटू उनका समय। अगर मैं 10 घंटे ले सकता हूं मेरे ऊपर, मैं अगर मेरा खुद का 10 घंटा ले सकता हूं, अगर मेरे 6 लोग हैं तो मैं उनका भी 10 घंटे ले रहा हूं। दैट इज नोन एज लिवरेज। और यही चीज है जो एक बड़ा बिजनेस व्यक्ति, एक बिजनेसमैन, विच इज, भले आप टाटा की बात करेंगे, भले वो आप रिलायंस की बात करेंगे, भले आप इन्फोसिस की बात करेंगे, भले आप विप्रो की बात करेंगे, हर जगह पे ये जो समय को किस तरीके से बढ़ाना है उसी के ऊपर वर्क किया है। अगर वो चीज आपको समझ में आ गया है, दैट मीन्स हाँ, ये 6x6 स्ट्रक्चर हम लोग क्यों बता रहे हैं, वो चीज भी आपको समझ में आ जाएगा। और
सिर्फ 6 नहीं, और उसको और ज्यादा लोगों के साथ में क्यों करना है, आपको उस चीज को समझ में आ जाएगी। विजय, मेरा आप ये आंसर राहुल, क्लियर बहुत है? खूब। जैसे कि आपने बताया कि अगर आपकी इनकम को बढ़ाना है तो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके साथ काम करेंगे उतने ज्यादा घंटों का पैसा आपको मिलेगा। इस चीज को समझना जरूरी है। एक अकेला अगर काम कर रहा है, उसका कोई ग्रुप नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, तो एक नौकरी हो गई वो। जितने घंटे आपने काम किया आपको उतने घंटे के पैसे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आपको फायदा क्या है कि इसके अंदर आप सब अपने अपने लिए काम करते हैं, लेकिन सबके काम करने के जितने भी घंटे या मिनट हैं उसका फायदा सबको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी ब्यूटी है। सबने अपने लिए काम किया 1 घंटे, लेकिन अगर आपके साथ 100 लोग जुड़े हैं, सबने 1-1 घंटे काम किया और आपने भी 1 घंटे काम किया, तो आपको 101 घंटों का बेनिफिट मिलेगा। ये फायदा है डायरेक्ट सेलिंग का, ये फायदा है आपका नेटवर्क मार्केटिंग का। यही फायदा जो बताने के लिए आज उपस्थित हुए हैं 6x6 स्ट्रक्चर, यानी 6 लोगों के साथ काम की शुरुआत करें और हर व्यक्ति 6-6 लोगों को अपने साथ जोड़ता हुआ जाए, और काम करते हुए, खाली जोड़ना नहीं, काम करने वाले लोगों को जोड़ता हुआ जाए। 6x6 स्ट्रक्चर से आप अपने सपनों को बेहतरीन ढंग से पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विजय, इसमें एक खासियत ये है विजय कि यहाँ पे हम लोग एक पैसिव इनकम सिखा रहे हैं। पैसिव मीन्स अगर आप सो भी रहे हो, घूम रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, तो भी आपके अकाउंट में पैसे आना चाहिए। हम उस चीज की बात कर रहे हैं जहां पे पैसिव इनकम है, जहां पे इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज यही है बिजनेस। और जब मैं पैसिव इनकम की बात करता हूं तो आपको वो एक्टिव और पैसिव दोनों जानना बहुत जरूरी है। राहुल, हाँ, ये 6x6 स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें। विजय, इसमें देखो, हमने कंपनी की तरफ हम लोग जब भी हम लोग 6x6 स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैं हर बार मुझे एक चीज याद आता है। हमने अलग अलग नाम से फ्लाई लाइक एन ईगल, 6x6 स्ट्रक्चर, अलग अलग नाम से प्रमोशंस, अलग अलग नाम से हम लोग कैंप्स भी कंडक्ट किया। इस सब में हमारा एक ही उद्देश्य था कि ये जो 6x6 स्ट्रक्चर, ये DXN कॉम्पेंसेशन प्लान में एकदम बहुत नेसेसरी है। क्यों नहीं है? क्यों हमने शुरुआत में क्यों 2x2 नहीं बताया, क्यों 3x3 नहीं बताया, क्यों 4x4 नहीं बताया? 6 बिकॉज वो बेसिक रिक्वायरमेंट, एक हमारा जो कॉम्पेंसेशन प्लान, हमारा जो मार्केटिंग प्लान का जो बेसिक रिक्वायरमेंट, जहां पे आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा सकते हो, वो रिक्वायरमेंट हमारा प्लान के हिसाब से है। और वो प्लान के हिसाब से कैसे वर्क करना है, वो हम आज के इस छोटा सा प्रेजेंटेशन में हम आपको बताने का प्रयास रहेगा। और उम्मीद है कि आप इस चीज को समझेंगे कि हाँ, मुझे किस तरीके से करना है। मैं अभी आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है विजय? स्क्रीन पे दिख रहा है? या इट इज विजुअल। हाँ, यहाँ पे मैं हर बार एक डिस्क्लेमर जरूर दिखाता हूँ। डिस्क्लेमर इसलिए कि कल आप मुझे या फिर विजय या फिर कंपनी को ये नहीं पता कि हाँ, हमने उस मीटिंग में बोला था तो मुझे इस इनकम मिलना चाहिए। लेकिन आप अपने अगर सही तरीके से वर्क कर लिया, इसी तरीके से अगर वर्क कर लिया, तो आपको इस इनकम आपको निश्चित ही मिलेगा। लेकिन आपको काम करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम लोग कोई शॉर्टकट, ये लॉटरी स्कीम नहीं है कि आज ज्वाइन कर लिया और आपने कल आप बड़ा करोड़पति बन गया। लेकिन अगर आपने सही तरीके से आपने काम कर लिया तो आप इस बड़ा इनकम आप पा सकते हो। इसलिए मैं इस डिस्क्लेमर आपको दिखाना चाहूंगा कि द एग्जांपल मेड इन दिस प्रेजेंटेशन आर हाइपोथेटिकल and merely meant to describe and explain the mechanism of the compensation plan and its various bonus features. Any statement made in this page are not meant as earning claims. Earning claims नहीं है, लेकिन nor do they represent any promises और guarantee नहीं है। लेकिन अगर specific earnings आप करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। Specific earnings influence करता है many factors, लेकिन ये factors जो इसके अंदर included है, अगर आपने कर दिया है तो आप निश्चित ही आप इसमें पा सकते हो। तो मुझे इसमें सबसे important ये चीज है कि अगर मैं एक लेमैन को भी समझाऊंगा मैं कि हाँ, ये 6x6 स्ट्रक्चर क्या है, तो उनको मैं बेसिक ये समझाऊंगा, कोशिश करूंगा सबसे पहले कि वो समझने के लिए अगर हम ये एज्यूम करेंगे कि आपका एक पीवी, एक पॉइंट वैल्यू, एक सेल्स वैल्यू का बराबर है, ताकि उनको समझ में आ जाए कि हाँ, कैलकुलेशन ऐसा किया जाता है। और इस स्ट्रक्चर में हमने ये भी कोशिश किया है
करने के प्रयास किया है कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कम से कम 1000 पॉइंट्स करेंगे, 1000 पर्सनल पीपीवी करेंगे, पर्सनल पॉइंट पीपीवी करेंगे। और ये हर व्यक्ति जो भी है, जो 6 लोग हमारे बीच में हैं, वो ये चीज को डुप्लीकेट करेंगे। देखिए यहाँ पे डुप्लीकेशन वर्ड आपको उसको समझना बहुत जरूरी है, और वो चीज समझने के लिए आपको जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 6 लोग आप जो सिलेक्ट करेंगे और जिसको आप बताएंगे कि हाँ इसको ऐसा करना है, आपको ये सिस्टम है, आपको ऐसा करने से आपको ऐसा मिलेगा, तो जो 6 लोग हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको ट्रेन करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपको ये समझना है कि पहले स्टेज, सेकेंड स्टेज में जहां पे आप फर्स्ट स्टेज गुजरते हो, सेकेंड स्टेज गुजरते हो, आपको कम से कम 1000 पॉइंट्स बनाने, 1000 पर्सनल पॉइंट वैल्यू बनानी। तीसरे स्टेज में आपको 3000 बनाने, क्योंकि समझने के लिए 3000 में तीसरी मंथ में वो डायमंड बन जाता है। इस डुप्लीकेशन प्रोसीजर में, ये 6x6 स्ट्रक्चर में वो डायमंड बन जाता है, एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन जाता है। तो उनको पर्सनल पीवी के साथ में उनको पर्सनल ग्रुप पीवी की जरूरत पड़ता है, जो 3000 लेते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक थर्ड स्टेज में आपको 3000 बनानी। अब या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि जब आप स्टार एजेंट बन जाते हो तो आपको 3000 पर्सनल पीपीवी करना है। तो मैं आगे लेके जाना चाहूंगा इस प्रेजेंटेशन में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि आपका जो चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो इस बिजनेस मॉडल में जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट्स का रीपरचेसेस हो जाए हर महीने। तो आपका जो प्रोडक्ट चॉइसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरजीजीएल, स्पारुलिना वो सब है, लेकिन जो प्रोडक्ट जो फास्ट मूविंग होता है, जो घर के अंदर दोबारा रिप्लेस होता है, अगर उस प्रोडक्ट्स के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने सोप दिखाया है, टूथपेस्ट दिखाया है, हैंड वॉश दिखाया है, और सॉरी अपना डिश क्लीनर दिखाया है, हमारा फैब्रिक क्लीन बताया, हमारा डायना वॉश बताया। ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपको इजीली रिप्लेस होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये 6x6 स्ट्रक्चर में आपको जब आपके ग्रुप जब सिखाते हो तो उनको ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यूज भी करना है, किस तरीके से आपको बताना है, वो ये समझाना बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट स्टेज होता है। उसके बाद उनको वो दिमाग में आता है हाँ ये प्रोडक्ट जो है एक तो यूनिक तो है ही, डीएक्सएल प्रोडक्ट यूनिक तो है ही, यूनिक के साथ में ये रिप्लेस भी होता है। भले आप हमारे साबुन की बात करेंगे, भले आप टूथपेस्ट की बात करेंगे, भले हमारे डिश वॉश की बात करेंगे, इस सब में एक यूनिकनेस है। तो वो यूनिकनेस के साथ में जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट रहता है तो इजी पड़ता है कि दोबारा अगले महीने वापस रीपरचेस करें। तो ये फर्स्ट चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपके लोग को चूज कैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 लोग जो हम बोलते हैं, कभी कभी मुझे मार्केट हर बार बताते हैं कि मेरे पास 6 लोग नहीं है, मैं 6 लोगों के साथ मैं ढूंढता हूं तो भी मुझे 6 लोग नहीं मिल पाते। देखिए, अगर आपका कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग है तो आप 6 आउट ऑफ 6 को कन्विंस कर सकते हो। लेकिन मैं हर बार कहता हूं, अगर आपका कन्विंसिंग पावर आपको लगा कि मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा 6 आउट ऑफ 6 या फिर 1 आउट ऑफ 1 को मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, तो आपको लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर जरूर जाना है। लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि अगर आपके पास 100 आदमी है, अगर आपने 100 आदमी के साथ में हम डीएक्सएल की बात किया, अपॉर्चुनिटी की बात किया, प्रोडक्ट्स की बात किया, सिस्टम की बात किया, 100 में से 10% दैट इज 10 लोग निश्चित आपके साथ रहते हैं। तो अगर आपको 6 लोग चाहिए, अगर आप उसमें लॉ ऑफ एवरेज के साथ में जाना चाहेंगे तो 60 लोग काफी होता है, क्योंकि 60 लोगों के साथ आप डीएक्सएल अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, डीएक्सएल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, डीएक्सएल कॉम्पेंसेशन प्लान के बारे में बात करेंगे, 60 में से 6 लोग आपके साथ बन जाते हैं। और हमें ये 6 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 6 लोग आपको आगे जाके पैसिव इनकम दिलाता है। ये 6x6 स्ट्रक्चर, आप देखिए 6x6 स्ट्रक्चर में आप जब तक आपके इस लाइंस को, अलग अलग लाइंस को इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हैं, वो आगे आपको पैसिव इनकम नहीं दे पाते। तो वो पैसिव इनकम
देखो पैसिव इनकम जब बात करूंगा, सोते हुए भी आपकी अकाउंट में पैसा आना चाहिए। वो पैसिव इनकम आने के लिए आपके ये जो लाइंस है उसको इंडिपेंडेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है, मैंने अलग ABCD अलग नाम लिखा है ताकि आपको समझ में आने के लिए। ये लोग आपके पैसिव इनकम देने के लिए ये लोग आपको मदद करेगा। तो ये लोग मदद अगर ये लोग आपको पैसिव इनकम आपको देना है, आपको वो मैसिव इनकम आपको देना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेनिंग, एजुकेशन। जो कंपनी जैसे आज के जैसे 12 बजे का जो सेशंस होते हैं इसमें देते हैं, हमारा जो कैंप्स में देते हैं, हम लोग फुल डे ट्रेनिंग में देते हैं, हमारा रीजनल लैंग्वेजेस में भी हम लोग देते हैं। वो जो ट्रेनिंग वो एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो इस चीज को समझ लिया कि हाँ मुझे ट्रेनिंग करना है, मुझे ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग देना भी है, और ये चीज आपने समझ लिया, सोच लो आपने आपका एक बड़ा सा मेजॉरिटी आपका पोर्शन आपने सॉल्व कर लिया। तो ये जो लोग मिलते हैं तो आपको याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि उनको सीधा स्ट्रक्चर बता दी कि हाँ 6 लोग हैं, 6 लोग का भी प्रोडक्ट्स को बेचना है, अभी आपको पॉइंट जितना बनाना है, ना। ये जो 6 लोग के साथ आप उसको ट्रेनिंग देना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो उसको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो कि एक सपोज एक चाय है तो चाय का उसका बेनिफिट क्या है, तो DXN ऋषि चाय का बेनिफिट क्या है, तो उसको वो चीज को समझना बहुत जरूरी है। भले वो प्रोडक्ट्स का नॉलेज हो, भले वो हमारा मार्केटिंग प्लान हो, भले वो कंपनी सपोर्ट सिस्टम हो, जैसे आपका एड्रेस कैसे चेंज करना है या फिर आपका बैंक डिटेल्स कैसे चेंज करना है। तो ये सब कंपनी, ये प्रोडक्ट्स हो, कंपनसेशन प्लान, मार्केटिंग प्लान हो या फिर कंपनी सपोर्ट सिस्टम है, ये सब ट्रेनिंग्स इनको देना बहुत जरूरी है। और ये ट्रेनिंग्स में आपको इतना ट्रेनिंग देना है कि वो स्वयं नेक्स्ट लेवल में इसको ट्रेन करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस सिस्टम में, DXN सिस्टम में ये 6 हमने इसलिए चुना है कि ये 6 ही जरूरत पड़ता है हमारा मार्केटिंग प्लान में आपको हायर इनकम मिलने की। अगर DXN सिस्टम में अगर बात करेंगे, 6 आपको जरूरत पर 6 लाइन्स की जरूरत कब पड़ता है, क्योंकि आपको डायमंड बनने के लिए। और ये डायमंड एक ऐसा स्टेटस रहता है जहां पे आपको बड़ा इनकम मिलने के लिए स्टार्ट होता है। तो ये 6 लोग को जो आप ट्रेन करोगे और उनको बताएंगे कि हाँ मुझे अभी मेरा जो विजन है बड़ा इनकम पर कमाने के लिए, और मेरा विजन के साथ में आप लोग भी अगर उस विजन को पाना है तो आपको भी इस चीज को समझना है, इस चीज को रिप्लिकेट करना है। तो वो जो हम उनको समझाएंगे, ये 6 लोगों को जब समझाएंगे तो उनको ये फिगर्स क्या मैसिव इनकम मिल सकता है वो उनको बताना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले आपको बताना कि पहला का स्टेज है। देखो मैं स्टेज की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे महीने की बात नहीं कर रहा कि हाँ 1 महीने 2 महीने 3 महीने की बात नहीं कर रहा। मैं स्टेज 1 शायद पहला मंथ हो सकता है, शायद दूसरा मंथ हो सकता है, लेकिन मैंने अभी आपको प्रोडक्ट्स के बारे में उनको ट्रेनिंग दिया, उनको मार्केटिंग प्लान के बारे में ट्रेनिंग दिया। उसके बाद जब 6 लोगों को समझाया तो वो लोग भी जब 6 लोग हजार पॉइंट्स करते हैं, या फिर हम ऐसा करें कि 6 लोग भी 3000 वर्थ और प्रोडक्ट्स 3000 रुपए का प्रोडक्ट जो लगभग हमारा 1000 PV होते हैं, अगर वो यूज करते हैं या फिर किसी को बताते हैं या सेल करते हैं तो उसको लगभग 270 रुपए 270 रुपीज अप्रोक्सीमेटली 300 मानिएगा, तो ये चीज मिलेंगे। अगर यही चीज देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीज आप आगे लेके कैसे जाओगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपने उनको ये चीज सिखा दिया, ट्रेनिंग्स, एजुकेशन, और यहाँ पे एजुकेशन में आपको जैसे डॉक्टर्स पे इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए जैसे बहुत सालों लगाना ऐसे लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ 2 महीने 3 महीने जरूरत पड़ता है मिनिमम ट्रेनिंग्स, क्योंकि उनको प्रोडक्ट का भी कवर करना है, प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान भी कवर करना है, कंपनी सपोर्ट सिस्टम भी कवर करना है, तो लगभग 2-3 महीने लग जाता है। तो इसके बाद उनको नेक्स्ट लेवल में उनको लेके जाने के लिए वो डुप्लीकेशन वाला वर्ड आपको उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो समझेंगे नहीं उसका वो जो उसको जो बड़ा व्यू उनको बड़ा उसको चीज का बड़ा इनकम का प्लान का उनको मालूम नहीं पड़ेगा। तो सेकेंड लेवल में जब वो सेकेंड स्टेज में जब वो डुप्लीकेट करता है, वो 6 लोग
फिर वापस 6 के साथ में जाएंगे। मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला था कि फर्स्ट स्टेज में आपको 1000 पॉइंट बनानी है, सेकेंड स्टेज में भी आपको 1000 पॉइंट बनानी है। सेकेंड स्टेज में वो जब करेंगे वो भी उनको भी आपको वही सिखाना कि आपको भी अभी 1000 पॉइंट बनाना है, 1000 पर्सनल पॉइंट वैल्यू बनानी है। एंड यहाँ पे हमारी यही कोशिश है कि जो आपके पास नॉलेज है आपने 6 लोगों को दे दिया है, और उन्होंने जो नॉलेज गेन करने के बाद इस चीज को समझ के वापस 6 लोगों के साथ वो एजुकेशन दे रहे, ट्रेनिंग दे रहे। यहाँ पे अब अगर जब तक ये इस एग्जांपल में जैसे आपका ये फर्स्ट जनरेशन है, इनको जब तक आप उनको आप फुल ट्रेन नहीं करोगे तो वो नीचे लेवल तक नहीं जा सकते। अक्सर ये देखा जाता है कि आपने आपका फर्स्ट जनरेशन को ट्रेन कर दिया और उनका फर्स्ट जनरेशन जो आपका सेकंड जनरेशन जब कुछ सवाल उठाते हैं आप वहां पे जाके उसको समझाते हो, तो गलत हो जाता है। यहाँ पे आपको ये करना है कि आपको जाके उसको क्लियर नहीं करना है, आप कोशिश ये करना है कि आप उनका अपलाइन जो है क्या उनको इस सवाल का जवाब आता है। अगर आता नहीं है तो आपका फर्स्ट बनता है आप उनको पहले बता दो, उसके बाद वो जाके उनके फर्स्ट लेवल पे दैट मींस आपके सेकंड लेवल को बताएंगे। कहने का मतलब यही है कि इस एंटायर प्रोसेस के अंदर हम ये लोगों को इंडिपेंडेंट कराना चाहते हैं। जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं बनते हैं ये पैसिव इनकम कभी नहीं मिलेगा। तो इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 6 into 6 स्ट्रक्चर, देखिए सिंपल सी चीज बता रहा हूं, और इस सिस्टम में आपको एक चीज याद आपको बताना चाहूंगा, ये सिस्टम में आपको सक्सेसफुल मिलने के लिए ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है उसको बहुत सिंपल रखना है, बहुत सिंपल रखना है, और जो सिंपल रहता है वो ही डुप्लीकेट होता है। इसलिए हम लोग बता रहे कि आप 6 लोगों को चुन लिया, अब उनको भी 6 लोगों को चुन के काम करने के लिए कहना है, और सबको यही करना है ट्रेनिंग्स। और जब सेकेंड स्टेज में जो 1 महीने में भी हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है, 4 महीने में हो सकता है, डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल पे। लेकिन मैं सेकेंड स्टेज दिखा रहा हूँ, वो शायद 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, लेकिन सेकेंड स्टेज में लगभग 7000, और एक बिगिनर्स के लिए लगभग एक काफी होता है। ये फर्स्ट स्टेज उसको ठीक है स्टार्ट करने के लिए, हाँ उसको एक इनकम मिल गया, और उस इनकम में ये सारा इनकम में मैंने रिटेल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस टू एमआरपी में जो बेच जो गैप मिलते हैं, जो डिफरेंस मिलते हैं, वो उसमें गिना नहीं है। सेकेंड स्टेज में लगभग 7000 रुपए। देखिए दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, ये जो डुप्लीकेशन जो मैं आपको बार बार जो वर्ड यूज करता हूँ, इसका यही फायदा है। इसी का जो रियल जो इम्पोर्टेंस जो वर्ड का अगर किसी ने समझ लिया तो सोच लो उसका आधा सिस्टम उसको वहीं पे समझ में आ गया। तो अगर आगे जाके देखेंगे तो आप ये सोचिए कि तीसरी स्टेज में कितना हो सकता है। आपने क्या किया था, पहले स्टेज में आपने 1000 पॉइंट्स किया था, सेकेंड स्टेज में आपने उनको वापस 1000 स्टेज किया, तीसरी स्टेज में आप 3000 पर्सनल पीवी, क्योंकि इस स्टेज में आप बन जाते हो एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड। देखिए इस सिस्टम का कितना खूबसूरत है, कितना सिस्टम। एक बार सिस्टम बनने के बाद अब ऑटोमेटिकली एक दर्जा, एक स्टेटस बनते हैं क्वालिफाइड स्टार डायमंड, आप 37% बनते हो, और आपके जो फर्स्ट जनरेशन है ये सारे के सारे क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाते हैं 25%, और उनके नीचे जो पहले था 9% और 6%। देखिए कहने के लिए बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब तक इस चीज का अहमियत आप समझेंगे नहीं, इस इंपॉर्टेंस की 6 लोग क्यों जरूरत है इस सिस्टम में, डीएक्सन का प्लान के अंदर, आप इसको बड़ा सा आप विजन आप नहीं ले पाओगे। तो इस थर्ड स्टेज में आप देखिएगा आपकी इनकम लगभग 45,000 के आसपास जाता है। 45,000 आई थिंक एक बिगिनर के लिए काफी होता है। हर कोई ये सोचता है कि मेरा चेक एक बार 50,000 क्रॉस हो जाए मैं सबको दिखाऊंगा मैं। तो ये थर्ड स्टेज जो 1 महीने में हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है, 4 महीने में हो सकता है, लेकिन ज्यादा लंबा बढ़ाएगा मत। अब ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ मुझे अभी बहुत टाइम, अभी देखते अभी कंपनी कहते कि आपके हिसाब से वो करिए। आप जब तक एक फिक्स टाइम फ्रेम नहीं रखते हो आप आगे बढ़ नहीं। तो हर स्टेज में, भले वो फर्स्ट स्टेज हो, भले वो सेकेंड स्टेज हो, भले वो थर्ड स्टेज हो, आप एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम
आप जब तक नहीं रखोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको रखना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, मैं फर्स्ट स्टेज में कम से कम मैक्सिमम 1 महीने या फिर 2 महीने में करूंगा, सेकंड स्टेज 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में करूंगा, थर्ड स्टेज 5 महीने, 6 महीने में करूंगा। जब तक आपका ये क्लियर विजन नहीं रहेगा तो आपको वो डिफिकल्ट रहेगा आपका ये जो गोल्स को पाने के लिए। देखिए ये जो सिस्टम है 6x6, ये सिस्टम के साथ में कुछ ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिकली काम करने लगता है, और वो ऑटोमेटिक जब काम करता है वो बड़ा इनकम आता है। देखिए चौथी स्टेज में आप एक ट्रिपल डायमंड बनते हो, क्योंकि आपके नीचे जो 6 लोग हैं फर्स्ट जनरेशन में वो सबके सब डायमंड बन जाते हैं, और वो सबके सब जब क्वालिफाइड डायमंड बनते हो आप बन जाते हो तो एक ट्रिपल डायमंड। देखिए एम में देखिए 6 स्ट्रक्चर में आप स्टेटस भी आपका बढ़ता है और इनकम भी बढ़ता है। अभी भी देखा जाता है कि बहुत सारा लोग डिस्ट्रीब्यूटर सोचते हैं कि नहीं मैं पहले एक लाइन को स्ट्रॉन्ग करूंगा, सेकंड लाइन को स्ट्रॉन्ग करूंगा, थर्ड लाइन को स्ट्रॉन्ग करूंगा, फोर्थ लाइन को स्ट्रॉन्ग। लेकिन मेरा यही एडवाइस रहता है सभी से कि आप जब प्लान करते हो आप एक साथ ही 6 के साथ प्लान करिए, मिनिमम 6 के साथ, ताकि आपको वो बड़ा सा जो फिगर्स आपको देखने के लिए आपको अपना आप उसके लिए वर्क करोगे। देखिए 4th लेवल में इतना प्यारा सिस्टम बना है जहां पे एक बोरोइंग कंसेप्ट भी एप्लीकेबल होता है। अब ये बोरोइंग उधारी सिस्टम देखिए, सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग बना है, डीएक्सएम मार्केटिंग प्लान कितना स्ट्रॉन्ग बना है। यहाँ पे आप ऐसा स्टेज पे पहुंचते हो जहां पे आपको एक क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ता है डायमंड बनने के बाद, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि डायमंड ग्रुप पीवी। इस चौथी स्टेज में वो डायमंड ग्रुप पीवी जो मिनिमम 25,000 डीजीपी होता है, वहां पे भी 4 लाइन ऑनवर्ड्स जहां पे 4 लाख 1 लाख की जरूरत पड़ता है, यहाँ पे बोरिंग करके उसको क्वालिफाई किया जाता है। ये आपको ये ऑटोमेटिक होता है। आपको ऐसा नहीं कि कंपनी को फोन कर बोलना पड़ता है नहीं मेरा अभी क्वालिफाई हुआ नहीं, आप मुझे उधारी ये बोरिंग कंसेप्ट अप्लीकेबल करता ना, ये ऑटोमेटिक होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्टेज पे मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बोरिंग कंसेप्ट एप्लीकेबल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस की जरूरत पड़ता है। बोरिंग कंसेप्ट एप्लीकेबल होने के लिए आपको कम से कम SSD, दैट मीन्स कम से कम 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस अलग अलग लाइंस में होना जरूरी है। ये एक कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन, आपके पास 4 QSA क्वालिफाइड स्टार एजेंट लाइंस होना जरूरी है, जिसमें से क्वालिफाइड डायमंड भी एक लाइन है, और उसके अलावा आपका 1000 PPV और 1000 और 3000 पर्सनल ग्रुप PPV, ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको जरूरी है। ये कंडीशंस आप अगर आप फुलफिल करेंगे तो ये बोरोइंग कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। कई बार हमको लगता है कि बोरोइंग आता कैसे है, लेकिन वही मैं बताऊं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली करता है, बना है क्योंकि सिस्टम ऐसा बना कि आपके पास अगर 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड से तो ऑटोमेटिकली होता है। जैसे आपको मैंने ये 6 स्ट्रक्चर का बताया ना, यहाँ पे मैंने बताया कि आपको कम से कम 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस की जरूरत है। यहाँ पे 6 लाइंस है, 6 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइंस है, और 6 क्वालिफाइड स्टार डायमंड्स भी है और 6 QSA लाइंस भी है, जबकि वो सिस्टम के अंदर कहता है कि 2 क्वालिफाइड स्टार डायमंड लाइन, 4 QSA लाइंस। इसीलिए ये चीज एप्लीकेबल होता है। चौथी स्टेज में लगभग 1,40,000 ये काफी होता है जस्ट चौथी स्टेज में। तो चौथी स्टेज शायद चौथी मंथ में हो सकता है, शायद 1 महीने में भी हो सकता है अगर आप एग्रेसिव होते हैं, और शायद 1 साल में हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, एक टाइम फ्रेम, एक क्लियर टाइम फ्रेम आपको होना बहुत जरूरी है। इस सिस्टम में अगर आपने सोचा कि नहीं ठीक है, मैं जैसे मैं जाऊंगा, मैं वर्क करूंगा, देखूंगा यहाँ कब मैं डायमंड बन जाऊंगा, कब मैं ट्रिपल डायमंड बन जाऊंगा, कब मेरा इनकम होगा, अगर ऐसा आपने वर्क करना स्टार्ट किया तो वो वर्क नहीं होगा। आपको क्लियर, आपका गोल्स विद टाइम फ्रेम, ठीक है मुझे ये स्टेटस और ये पैसा मुझे इस महीने 1-2 महीने के बाद चाहिए, विद डेट, मुझे ये स्टेटस और ये पैसा इस महीने के बाद चाहिए, तो वो क्लियर टाइम फ्रेम गोल सेटिंग के साथ होना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये चीज मैं बताता हूँ तो हर कोई बोलता कि मैं ये इसको स्टार्ट करना, मेरे ग्रुप में स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ये जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं
तो आप इस चार्ट को देखिएगा, इसको हमने बताया कि फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर चार्ट, जहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि मुझे आपका जो ग्रुप है कौन कौन कहां पे कैसा कर रहा है। इससे जो फ्रंट लाइन जब आपके ग्रुप जब करेंगे तो आप उनको जब कंप्लीट होने के बाद इस चार्ट को उनको दीजिएगा, जिसमें उनका नाम लिखा रहेगा, उनका बोर्ड लिखा रहेगा, उनका पीवीज, उस मैंने उनको जो स्टार्ट किया थी 1000 पॉइंट्स वो लिखा है, उनका मोबाइल नंबर, ताकि आपको उनको ट्रैक करें, उनको ट्रेन करने के लिए। देखिए सिस्टम बनाने के लिए कंपनी आपको हर बार बताएगा भी और बार बार बताएगा, लेकिन वो काम अल्टीमेटली आपको करना है। जब तक आप स्वयं इस चीज को समझोगे नहीं तब तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, तो बहुत मुश्किल है। तो ये जब विड्थ की मैंने बात किया 6 में, अक्सर मुझे मार्केट से ये पूछा जाता है कि क्या विड्थ इंपॉर्टेंट है कि डेप्थ इंपॉर्टेंट है। मींस चौड़ाई में मेरा मेंबर्स मुझे जरूरत है, क्या मुझे गहराई में डेप्थ में मुझे जरूरत है ना। आप भी सोचते हैं कि मुझे कहाँ कैसे वो करना है। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको याद रखना है, आप जब विड्थ में जब काम करोगे तो आपको फास्ट इनकम मिलता है। आप जब डेप्थ में काम करोगे आप सिक्योर बना रहे हो, आपके लाइंस को सिक्योर बना रहे हो। अगर हाँ मेरा फर्स्ट जनरेशन काम नहीं किया तो सेकंड जनरेशन काम करेगा, सेकंड जनरेशन काम नहीं किया थर्ड जनरेशन काम करेगा। तो विड्थ भी इंपॉर्टेंट है, डेप्थ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप एकदम फोकस वर्क करना चाहते हो, आप एकदम क्लियर है, आपका जो लोग भी क्लियर है वो वर्क करना चाहते हो, तो आप विड्थ पे फोकस वो कर सकते हो। आप जब विड्थ पे जब फोकस करोगे तो ये सिर्फ 6 लाइन में आपको लगभग 1,40,000 के आसपास मैंने इनकम बताया, सिर्फ 6 लाइन से। आप गेस कर सकते हो कि अगर वो 7 लाइन होगा तो वो बढ़ेगा या घटेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, 11 लाइन, 12 लाइन, आपको रोका किसने नहीं ना। तो मिनिमम ये जो 6 कंडीशंस, ऐसा नहीं कि 6 को हमने कंपनी ने बता दिया कि आपने 6 लाइंस बनाना तो 6 लाइन, ऐसा नहीं। तो आपको ये तय करना है, तो मिनिमम कंडीशन में के लिए ज्यादा इनकम मिनिमम 6। लेकिन अगर आप में हिम्मत है, आप अच्छी तरीके से और भी बड़ा इनकम बनाने की इच्छुक रखते हो, तो आप 6 पे मत रुकेगा, आप बढ़ाते जाएगा। 7 लाइंस आप मिनिमम और 20 लाइंस पे सोचिएगा। मैं तो हर बार कहता हूँ कि अगर आप में वो गट्स है, आप सोचते कि मुझे बड़ा सा इनकम, मैं 1.5 लाख में भी मैं रुकना नहीं चाहता, मैं 4.5 5 लाख मिनिमम 4 स्टेज में लेके आना चाहता हूँ, तो आप 20-20 के लिए ना 20-20 20-20, तो उसका जो आउटपुट है डेफिनेटली ये इसका फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, कंपाउंड के साथ होता है। अब हर बार सोचता है, जो मार्केट में हर बार एक चीज बोलते हैं कि सर 4 स्टेज में इतना आता है, 5वें स्टेज में कितना है, 5वें स्टेज में मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है। अगर क्योंकि आप जब करेंगे आप सोचेगा ना कि बाप रे इतना बड़ा इनकम हो सकता है डिक्सन के अंदर सिर्फ 6 लोग के साथ में। लेकिन मैं लेके आऊंगा जरूर, इसे कैलकुलेशन करने के बाद एक लगभग 3 टाइम्स रहता है 6 स्टेज में और 5th स्टेज में, और 6 स्टेज में बढ़ते जाता है। लेकिन मैं लेके आऊंगा ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो स्ट्रेंथ इस सिस्टम में, ये जो सिस्टम बनाने के बाद स्ट्रेंथ क्या है, इसको हम क्यों कहते हैं कि ये एक बेहतरीन करियर है, हम क्यों कहते हैं, आपको उस तब समझ में आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हम लोग 6x6 स्ट्रक्चर कहते हैं, ये आपका माइंड सेटिंग क्लियर करने के लिए कि हाँ डीएक्सएल में जो हायर ग्रोथ मिलने के लिए कम से मिनिमम बोलते हैं ना, मिनिमम कंडीशंस बोलते हैं ना। आप किसी जॉब में अप्लाई करते हो तो उनको हम बोलते हैं आप मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर आप मिनिमम एक पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर एमबीए होना चाहिए। तो हमारा सिस्टम है, डीएक्सएल सिस्टम में आपको हायर इनकम मिलने के लिए मिनिमम आपको 6 इंडिपेंडेंट वर्किंग लाइंस होना जरूरी है। जिनको ये समझ में आ गया तो उनका डायरेक्शन एकदम क्लियर रहता है। और यही चीज हमने इस करियर में हमें देखा है कि जिनको समझ में आ गया है हाँ ये मिनिमम 6 लाइंस की बहुत जरूरत है, तो वो उनका जो सक्सेस का जो फास्टनेस है वो एकदम विजिबल रहता है, क्लियर रहता है। तो दोस्तों मेरा यही सजेशन, मेरा यही रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप इस 6x6 स्ट्रक्चर पे फोकस करने के लिए, बिकॉज ये एक चीज है जहां पे आपको हायर इनकम, हायर ग्रोथ, हायर
बड़ा सा गोल आपको आपको ना पाने के लिए हेल्प करेंगे। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको ये चेन लाइंस, देखिए डीएक्सन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग बना है, ऐसा नहीं कि चेन लाइंस आपको सिर्फ ये इंडिया में बना सकते हो या फिर एक जगह पे बना सकते हो। हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, आप एक मेंबरशिप कोड या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर कोड से पूरा दुनिया भर में आपके लाइंस आप स्टार्ट कर सकते हो, भले वो मलेशिया हो, भले वो सिंगापुर हो, भले वो नाइजीरिया हो, भले वो सूडान हो, भले वो इथियोपिया, एनी कंट्री, कोई सा भी कंट्री में आप आपका ये स्पॉन्सर कर सकते हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। इसलिए हमें बोलते हैं कि हमारा जो मार्केट है बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। जितना इम्पोर्टेंट हमारा प्रोडक्ट्स है, जितना यूनिक हमारा प्रोडक्ट्स है, उतना ही यूनिक, उतना ही बेहतरीन। उम्मीद करता हूँ कि इस शॉर्ट प्रेजेंटेशन में आपको 6 स्ट्रक्चर का महत्व आपको समझा होगा, बिकॉज ये चीज आपको बार बार सुनने की जरूरत है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, मैं हम लोग क्यों कह रहे हैं, लेकिन आपको ये सुनना भी जरूरी है, और इस चीज को आपका टीम में, आपको जो एंटायर टीम को भी सिखाना भी बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि ना हम लोग जब जुड़ते हैं, हम लोग एकदम ब्लाइंडली अंधे सरी का काम करना स्टार्ट करते हो। अब देखते भी नहीं हो कि हाँ जैसे आते जुड़ते जाता है, लेकिन जिसका विजन क्लियर है, जिसका गोल क्लियर है, जिसका हमारा प्लान क्लियर रहता है, वो शुरुआत से ही इस प्रेजेंटेशन में, आज के शॉर्ट प्रेजेंटेशन में आपको इस मैसेज जरूर मिला होगा कि 6 से आप बड़ा सा इनकम बना सकते हो, बड़ा सा लाइन में चार स्टेज तक दिखाया आपको, चलता है। आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक करियर बनाना चाहते हैं, with the right company, with the right industry and right time, because DXN जो है, हम हर वक्त जो नए लोगों को भी कहते हैं कि सही वक्त तो अब आ गया है DXN का बिजनेस करने के लिए, बिकॉज अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गया है, और भी नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, और इस नए प्रोडक्ट्स के साथ में आपको और भी मौका मिलता है इस 6 लोगों को और भी स्ट्रॉन्ग करने की। सो मनोरंजन, बैक टू, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे तो जरूर पूछ सकते हैं इसके साथ में। 6x6 स्ट्रक्चर आपने सर बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, स्टेज वाइज कैसे हमारा इनकम कितना हो सकता है, कि एग्जाम्पल के जरिए आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। हमारे दर्शकों की तरफ से एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे कि सर पता है कि अगले महीने फेस ऑफ DXN, कई जगह फेस ऑफ DXN कहा जाता है और कई जगह लीडर्स आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कहा जाता है, तो अगले महीने से कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा है। तो ये 6x6 स्ट्रक्चर, ये जो फेस ऑफ DXN या लीडर्स ओरिएंटेशन या लीडर्स आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है, इसके साथ कैसे सामंजस्य रखता है, इसके ऊपर प्रकाश डालिए सर। बिल्कुल मनोरंजन जी, आपने जो बोला ना, बस हर किसी को शायद ये लगता है कि जो फेस ऑफ DXN हो गया या फिर लीडर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम हो गया, वो जो हमारा रिवॉर्ड था उस पर्टिकुलर प्रमोशन, उसके लिए है। वो जो 1 फुल डे ट्रेनिंग उससे भी इम्पोर्टेंट है ये आपको जो स्ट्रक्चर में हेल्प करने के लिए, बिकॉज अगर आप उसमें ध्यान देंगे, ये जो 6 लाइंस के ऊपर उसमें भी डाला है, जिसमें हम लोग ग्रुप भी डाला है इसमें, कि आपके पास कम से कम 6 लाइंस विद ग्रुप भी, कुछ जगह पे अलग अलग है, 3000 5000 डिपेंड्स, लेकिन स्ट्रक्चर के ऊपर जब भी कोई प्रमोशन आया है स्ट्रक्चर के ऊपर जरूर डाला है। लेकिन हाँ, हमारा कोशिश रहता है, मैनेजमेंट की तरफ से कोशिश रहता है कि आपको समझाए, बार बार अलग अलग तरीके से समझाए। ये फेस ऑफ DXN भी ऐसा ही है। तो ये जो इनिशियल जो आपका जो गोल है, जिसमें हमने बताया कि आपको ये मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, दैट इज जस्ट इनिशियल, लेकिन असल मजा तो बाद में है, जब आपके जो स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रांगली इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। मनोरंजन, बैक टू यू। जी सर, अभी और एक हमारा सवाल हमारा दर्शकों की तरफ से आ रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि IOC और इसको जो कहते हैं, विल प्रमोटिंग IOC एक्सक्लूडिंग सिम बी एलिजिबल फॉर फेस ऑफ DXN?
फेस ऑफ डिएक्शन में देखो वहां पे ग्रुप पीवीस वगैरह हमने बात किया है, तो ग्रुप पीवीस अगर आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से सही बैठता है तो जरूर गिना जाएगा, ग्रुप पीवी के हिसाब से बोल रहा हूं। लेकिन अगर सोच लो वो 6 लाइंस वगैरह नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर विल ट्राई टू इंक्लूड, विल नॉर्मली हम लोग जब भी हम लोग जो प्रमोशन करते हैं इट्स ऑल विथ सिम के साथ में रहते हैं, जो सिंप्लीफाइड इंप्रूव मार्केटिंग प्लान के साथ होते हैं। लेकिन डेफिनेटली वहां पे ऐसा कुछ केसेस आएगा जहां पे वो, लेकिन वो 6 लाइन्स वगैरह 6 लाइन्स ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो 3 लाइन में बोल रहे कि 3 लाइन। हाँ डेफिनेटली हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम रहते हैं कि हाँ जो 6 लाइन लेके आ गया आईओसी में लेके आ गया, कोशिश करें। लेकिन हमारा फोकस मेनली सिम पे है, सिम पे जो आपको रेगुलरली कंटिन्यूसली एवरी मंथ मिलेंगे पैसिव इनकम की बात। जी सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से आज का जो मीटिंग था उसको एक कई सारे एग्जाम्पल के जरिए, उदाहरण के माध्यम से आपने हमें बताए। उम्मीद करता हूँ सर आगे जाके ऐसे सेशंस हमें मिलता रहे आपसे। बहुत बहुत और धन्यवाद दर्शकों को मनोरंजन मैं हर बार बार करूंगा, आप 6 पे लिमिटेड मत रहिएगा। आप ये सोचिए कि मुझे उससे आगे कैसे बढ़ना है, कि अगर सिर्फ आप सोचो मैंने हाँ मैं 6 पे वर्क करूंगा, 6 पे रुक जाऊंगा, ये तो मिनिमम कंडीशन है। तो प्लीज आप बड़ा सा स्ट्रक्चर सोचिए, आप 20 भी सोचिए, 40 भी सोचिए, 100 भी सोचिए, लेकिन गो फॉर मोर। जी सर, जैसे कि आपने बता रहे हैं 6, मतलब 6 मिनिमम होना चाहिए, उसके ऊपर आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने लाइन को इतना स्ट्रांग कर सकते हैं, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं अपने लाइन को। जी सर, हमारे दर्शकों की तरफ से अभी शायद और कोई सवाल नहीं है। अगर कोई सवाल है तो हम दर्शक यहाँ पे रख सकते हैं। व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ आईओसी इन न्यू पैकेज एंड हाउ इट विल हेल्प? हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, हमारे एक वहां से आईओसी के ऊपर पूछ रहे हैं। आईओसी आपका एक ऐसा एक पैकेज है, एडिशनल पैकेज है जो आपको एक व्हाट इज एडिशनल इनकम के लिए, बाकी कंटिन्यूस नहीं है ना। बिकॉज जब तक अगर मेरे ग्रुप में आईओसी लोग रहेंगे वो वन टाइम में रहेगा और इनकम भी वन टाइम, वो एवरी मंथ परचेस नहीं करेंगे। तो वो एक एडिशनल पैकेज है जहां पर आपको सपोर्ट करने के लिए, जैसे एडिशनल मोटिवेशन के लिए। लेकिन आपको बार बार जहां पे हम लोग बताते हैं कि पैसिव इनकम की बात करते हैं, अगर पैसिव इनकम को आपको पाना है, एवरी मंथ आपको पाना है, तो डेफिनेटली आपको सिम पे ज्यादा फोकस करना है। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से आज का जो सेशन था, आपने हमें कुछ बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए भी मिला। उम्मीद करता हूँ हमारे जो दर्शक हम भी जुड़े हुए थे सारे नोट करके रखे होंगे, और अगले महीने जो कंटेस्ट शुरू हो रहा है जरूर उसमें ध्यान देंगे और जरूर उनका लाइफ में सक्सेस जरूर उनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मनोज जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों फिर हम मिलेंगे ठीक कल 12 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।